Hello to all of you, dear students. Myself, Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Nimka, Thana. Here is social science book and segment is history, our past, part first. Dear students, today we read and learn chapter first. What, where, how, and when. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headlines. Our 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? राशिदा जो थी वो पेपर पढ़ रही थी. अचानक उसकी जो आंखें हैं वो एक हेडलाइंस पे जाकर रुक गई. 100 साल पहले. उसको बहुत आश्चर्य हुआ कैसे कोई जो है बहुत साल पहले हुई चीज़ों को जान सकता है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. यस्टरडे यू कुड लिसन टू रेडियो, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remember. But what about long ago? Let's see how it can be done. Yesterday यानी कल आपने रेडियो सुना, टीवी देखा, न्यूज़पेपर को रीड किया. लास्ट ईयर आपने, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आपको याद है, तो भी आपको याद रह सकता है. लेकिन बहुत पुराने और बहुत पुरानी बातों को आपसे अगर कोई पूछे तो क्या आपको याद होगा. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. आइए पता लगाएं ये कैसे होता है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वॉर, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं. जैसे पहले के लोग थे वो क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े वो पहना करते थे, किस तरह के घरों में वो रहा करते थे. इसके अलावा जो है हंटर्स की, हम शिकारियों के बारे में, फार्मर्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, मर्चेंट्स के बारे में, प्रीस्ट पुजारियों के बारे में, और भी क्राफ्ट पर्सन के बारे में, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट के बारे में जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड. इसके अलावा जो हैं हम उन बातों के बारे में भी जान सकते हैं जैसे बच्चे जो खेल खेला करते थे, कहानियाँ जो वो सुना करते थे, और नाटक जो वो देखा करते थे, और गाने जो वो गाया करते थे. वेयर डिड पीपल लीव. Find the river Narmada on map. First, page 2. People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits, and other forest products for their food. They also hunted animals. Dear students, now you can find Narmada river on the map. Here is river Narmada. It means नर्मदा का जो नर्मदा वाली जो जगह थी, लोग वहाँ पे नदियों के किनारों पर हजारों साल पहले रहा करते थे. उनमें कुछ अर्लियस्ट पीपल जो कि वहाँ पे रहते थे स्किल्ड गैथरर्स थे, यानी कि वो लोग जो कि जंगल से जो है जंगल के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं एज ए फूड, और वो जानते थे कि जो उनके सराउंडिंग्स में जो है
प्लांट्स की और जो फॉरेस्ट की वास्ट बहुत बड़ी वेल्थ यानी संपदा है, इसलिए वो क्या करते थे, वहाँ से रूट्स को, फ्रूट्स को और भी अदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उनको कलेक्ट किया करते थे, और इसके साथ में वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे. नाउ फाउंड Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also begin rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. Dear students, now you can find here the Suleiman Hills and Kirthar Hills and also Vindhyas Hills in center and Garo Hills in north west. Here is Kirthar, Suleiman, Vindhyas and Garo Hills. Suleiman, dear students, Suleiman and Kirthar Hills to the northwest. Some of the areas were इसके कुछ एरिया सुलेमान और जो किरथार हिल्स हैं वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में हैं, और उनमें से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें जो है पुरुष और स्त्री उन्होंने सबसे पहले जो है ग्रो क्रॉप्स फसलों को उगाना शुरू किया, जैसे वीट और बार्ले, और अबाउट 8,000 ईयर्स अगो इसके कुछ प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं. इसके अलावा जो है लोगों ने एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे शीप, गॉट और कैटल्स, और वो गाँव में रहा करते थे. अब जो है आपको गारो की जो लोकेशन है वो मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाती हूँ. गारो जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के. यहाँ पे जो लोग हैं जो अदर एरियाज़, यहाँ पे आसपास के अदर एरियाज़ में भी जो लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप्ड कर लिया था. और द प्लेसेस वेयर राइस वाज द फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. और वो जगह जहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की गई थी वो विंध्यास के नॉर्थ में पाई गई. या हियर इज़ विंध्या एंड हेयर इज़ इट्स नॉर्थ. इट मीन्स चंबल वाले एरिया में और सोन वाले एरिया में जो है, नर्मदा वाले एरिया में और सतपुरा वाले एरिया में जो है चावल की खेती सबसे पहले शायद शुरुआत की गई होगी. यस. Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a large river or with a large river. यहाँ मैं आपको रिवर इंडस दिखा रही हूँ. Here is river Indus and Son, Betwa, Son. And here is river Indus and Jhelum, Ravi and Byas are its tributary. Here is river Ganga and Son is its tributary. River Indus is located in northwest part of India and Jhelum, Chenab and Ravi are its tributary. About 4,700 years ago, some of earlier cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. Locate the Ganga and its tributary called the Son. यहाँ मैं आपको बता दूं कि लगभग 4,700 साल पहले जो है कुछ सिटीज़ जो हैं वो रिवर के बैंक्स पे बस चुकी थी. बाद में लगभग 2,500 साल पहले सिटीज़ जो हैं
वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट पर भी बसने लगी और इसके साथ साथ ही सी कोस्ट यानी समुद्र तट वाली जगहों पर भी बसने लगी. And in ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country. Throughout, the people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchant traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. Yes, dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवर इंडस और गंगा के किनारे और समुद्र तट की वाली जगहों पर जो है लोग जो हैं बसने लगे थे. यहाँ गाँवों के प्रमाण भी मिले हैं. यहाँ नदियों के किनारे जो है गाँव बस चुके थे. इन रिवर्स के जो साउथ वाला जो एरिया था वो मगध के नाम से जाना जाता था और जो मगध के रूलर्स होते थे वो काफ़ी पावरफुल होते थे. उन्होंने एक लार्ज किंगडम जो है अपना बनाया था और ये किंगडम जो है भारत के दूसरे पार्ट्स में भी था. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में गमन किया करते थे और हिल्स और हाई माउंटेन्स और हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज उनकी जर्नी को डेंजरस तो बनाते थे लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था. तो जो स्त्री और पुरुष हुआ करते थे वो अपने लिवलहुड यानी कि अपने जीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे और उसके साथ ही जब कभी नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आती थी जैसे कि बाढ़ और सूखा, तो भी वो लोग जो है मूव किया करते थे. कई बार जो है कई राजा हैं वो दूसरे किसी की जो राज्य पर अधिकार करने के लिए जो है आर्मियों का मार्च करवाता था या फिर उन पे चढ़ाई करवाने के लिए जो है वो लोग ट्रैवल किया करते थे. इसके अलावा मर्चेंट्स जो होते थे यानी व्यापारी जो लोग होते थे वो कारवाओं में या फिर शिप्स पे और फिर वैल्यूएबल गुड्स यानी कि कीमती सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर बेचे जाने के लिए भी ट्रैवल किया करते थे. इसके अलावा रिलीजियस जो टीचर्स होते थे यानी कि जिसको बोला जाता है कि रिलीजियस टीचर जो हुआ करते थे वो भी जो है एक विलेज से दूसरे विलेज में जाया करते थे अपने उपदेश देने के लिए. रिलीजियस टीचर्स इट मीन्स उपदेशक, और ये टाउन टू टाउन जाते थे और कई बार इनको जो है अपने जो जर्नी में बीच में रुकना पड़ता था लोगों को एडवाइस देने के लिए या फिर उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. फाइनली अंततः ये हुआ कि कुछ पीपल शायद जो हैं वो सिर्फ एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, सिर्फ एडवेंचर के लिए ताकि वो नई चीज़ों को खोज सके और नई जगहों को खोज सके के लिए ही जो है ट्रैवल किया करते थे. ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया. इन सब की वजह से इन सब ने जो है एक देश से दूसरे देश के बीच में या एक जगह से दूसरे जगह के बीच में जो है आइडियाज़ को शेयर करने को लीड किया. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आज लोग क्यों ट्रैवल किया करते हैं? लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways to carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years.
ये जो मूवमेंट्स था लोगों का, इससे इन्हें जो हमारी जो संस्कृति है, परंपरागत जो संस्कृति है उसको काफ़ी डेवलप किया, उसको रिच किया, और जो है लोग एक दूसरे के साथ में, एक जगह से दूसरी जगह के साथ के लोगों के साथ में जो अपने आइडियाज़ शेयर करने लगे, जैसे कार्विंग, स्टोन को कार्व करना, या फिर म्यूज़िक को कंपोज करना, यहाँ तक कि खाना और खाने के तरीके भी जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ में शेयर किए हजारों या सौों सालों तक। नेम्स ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda also. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for country. हाँ तो बच्चों कि दो जो हैं वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं हमारे देश के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है इंडिया एंड और भारत। ये जो वर्ड है इंडिया, ये जो है इंडस या फिर इंडस के नाम से निकला है, जो कि संस्कृत में इसको सिंधु के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि ईरान और ग्रीस वाला जो एरिया है वहाँ पे ईरानीज़ और ग्रीक्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, यानी नॉर्थ वेस्ट के थ्रू है इंडिया में उन्होंने एंटर किया था अबाउट कम से कम 2500 साल पहले, और वो जो है इंडस के काफ़ी फैमिलियर बन गए थे। और इसी वजह से इस जो एरिया का नाम हिंदोज़ और इंडोज़ के नाम से जाना जाता है। और वो लैंड एरिया जो कि ईस्ट में था रिवर के, उसको इंडिया के नाम से जाने लगा। और जो नेम भारत है वो एक लोगों के ग्रुप के लिए, लोगों के एक समूह के लिए यूज़ में लिया जाता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे, एंड उनको मेंशन भी किया गया है ऋग्वेद के अंदर। और ये कंपोजिशन जो है संस्कृत में किया गया है, और इसका समय लगभग 3500 वर्ष पुराना बताया जाता है। बाद में जो है इसका नेम जो है भारत और इंडिया, वो एक कंट्री के नेम के लिए, यानी हमारी कंट्री के लिए नेम के लिए यूज़ किया जाने लगा। So dear students, here is chapter first is completed for you. So watch and read it carefully and complete your task. Thank you for watching my video.